Now we'll be discussing the psychosocial peculiarities of dentistry. Oral cavity, one of the most tender and most vulnerable part of the human body, part to our innermost self, anatomically speaking, an infant depend upon it for nourishment, even adults do as well. Communicate and express their feelings to explore the world. The tongue is the only fully developed organ at birth and functions during the first 2 months of life because it helps in sucking the milk. Visit to the dentist, visit to a doctor is unlike any other medical experience. फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, डिपेंडेंसी एंड वल्नरेबिलिटी आपको फील होती है जब आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हो. द रिजल्ट इज ऑब्वियसली एंगजाइटी. We place ourselves in a physically vulnerable position and suspend our usual physical boundaries. We render ourselves unable to communicate in the usual way and anticipate pain. मतलब we expect कि अब पेन होगी जब भी डेंटिस्ट आपके माउथ में कोई प्रोसीजर करेगा while remaining conscious. Dentist is perceived as threatening. Dental phobia. Fever and avoidance of going to dentist or fever of any dental treatment of care is known as dental phobia. People become panicked or terrified. Signs of dental phobia include trouble sleeping the night before the dental exam, feeling of nervousness, crying or physically ill at the very thought of visiting the dentist, intense uneasiness and difficulty in breathing. सारा का सारा ना आप एक हाइपर जिसे कहते हैं सिंपथेटिक स्टिमुलेशन में गए होते हो आप बिकॉज यू आर टेंस, यू आर इन स्टेट ऑफ एंगजाइटी. कॉजेज ऑफ डेंटल फोबिया एंड एंगजाइटी. फियर ऑफ पेन सबसे ज़्यादा होती है. आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने डेंटिस्ट के पास जाना होता है तो आपको सबसे ज़्यादा डर ही ये होता है कि दर्द होगा आपको दांत में. Is very common reason for avoiding the dentist. Many people are terrified of needles when inserted into their mouth. Fear of anesthetic side effects like dizziness, fat lip or nausea. Fat lip से मुराद swelling हो जाए lips की. And feeling of helplessness and loss of control एंड एम्बेरसमेंट एंड लॉस ऑफ अ पर्सनल स्पेस. ऑब्वियसली आप जब भी किसी फिजिशियन के पास जाते हो आप लॉस ऑफ पर्सनल स्पेस पे होते हो बिकॉज आप अपनी डिटेल्स शेयर करते हो, आप प्रेजेंट करते हो अपना आपको एग्जामिनेशन के लिए. एक्सपर्ट डेंटिस्ट कौन होता है? एक्सपर्ट डेंटिस्ट कैन ओवरकम द डेंटल एंग्जाइटी और फोबिया. एन एक्सपर्ट डेंटिस्ट इज द वन हु कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली, highly competent, endeavors to make each meeting pain free, genuinely cares about the patient and ability to nurture a patient without his past traumas. तो इसमें ज़रूरी नहीं कि ये एक्सपर्ट डेंटिस्ट, ये एक्सपर्ट फिजिशियन, चाहे आप डॉक्टर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप एक नर्स हो, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी ज़रूरी है ताकि आप पेशेंट के फोबिया को लेसन कर सको. Dental appearance and psychosocial well being. Aesthetic dentistry, concerned with the beauty, has become a prominent force in today's culture, with treatments ranging from bleaching to invisible braces. Because obviously, आजकल people are very much, concerned with the beauty, and because of social media, it become a very much of a factor to include the, maintenance of teeth. So it has become, very much in today. A healthy and attractive smile is undoubtedly valued in every society, and even the current focus on aesthetics. It is understandable that any deviation from ideal or normal appearance can be detrimental to a person's psychosocial well-being. Because आजकल बहुत ज़्यादा आपकी psyche या आपका social well-being आपकी outer appearance पे बहुत ज़्यादा लोगों ने आजकल ये हो गया कि डिपेंड करना शुरू कर गया. Anxiety disorders and oral health problems associated with anxiety. For example, कैंकर सोर जो आपके माउथ में अगर अक्सर आपने देखा होगा सोर्स बन जाते हैं टंग के ऊपर या चीक की ना साइड के ऊपर, तो वो कैंकर सोर्स होते हैं. ड्राई माउथ, lichen planus, it's also a lesion that can occur on the skin as well as the oral cavity. Mouth ulcers, बर्निंग माउथ सिंड्रोम एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स. तो ये ऐसे ओरल हेल्थ के डिसऑर्डर्स हैं जो कि एंग्जाइटी भी करवाते हैं आपको. एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं जिसके अंदर आप मतलब जो कि डेंटिस्ट्री से मतलब आपको हो जाए या डेंटल चेकअप की वजह से हो. तो ऑब्वियसली फोबियाज़ होती हैं आपको, जो ऑलरेडी हम डेंटल फोबिया की बात कर चुके हैं. पैनिक अटैक्स होते हैं. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जब आपने एक प्रोसीजर करवा लिया हो. ब्रग्जिम. पेशेंट विद एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स may disregard their oral health altogether and are increased risk for dental caries एंड पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स एज वेल. ब्रग्जिम का मतलब ये मुराद होता है जब आप दांत बहुत ज़्यादा भींच लेते हो ना अपने, उसको कहते हैं ब्रग्जिज्म. तो ये भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आता है. और ये सारे अगर आप नहीं अपने ओरल हेल्थ की रिगार्ड करते तो फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं.
Medications such as antidepressants and antipsychotics are used to deal with the psychotic disorders that occur when you go have a dental procedure in the coming. And decreased mouth salivation, which can increase the risk of developing tooth decay and periodontal diseases. For example, कुछ antidepressants या antipsychotics ऐसे होते हैं जो कि आपकी माउथ की सेलिवेशन को डिक्रीज़ करवा सकते हैं। तो अगर सलाइवा ना आपका बहुत अच्छा एक एंटीसेप्टिक होता है, जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है एंड अदर थिंग्स लाइक दैट, जो कि आपके माउथ को बैक्टीरिया से वॉश आउट रखते हैं। तो अगर आप कभी ऐसे मेडिकेशंस लेते हो तो आपका माउथ में सलाइवा कम बनता है, तो उसकी वजह से भी यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग टूथ डिके एंड पेरियोडोंटल डिजीजेस। Now, what can be the stress reduction techniques that you can use? Stress produces following changes in the body: release of adrenaline, which causes sympathetic stimulation, contraction of skeletal muscles, restriction of blood flow to the digestive system, increased blood flow to the brain, increased blood pressure, and pain in the temporomandibular joint movement. Psychological techniques to reduce stress include the psychological support and counseling, very important. डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स आप यूज़ करते हो कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा किसी स्ट्रेस से गुजरा है तो आप उसको ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज होने का एडवाइस करो जो कि उसको उससे निकाल दे। फॉर एग्जांपल जब हमने सब्लिमेशन की बात की थी, डिफेंस मैकेनिज़्म, तो आप किसी ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इंगेज हो ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो सको किसी भी स्ट्रेस से। एंड हिप्नोथेरेपी भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आप माइंड को, आजकल एक नई फील्ड आई हुई मेडिसिन की जिसके अंदर आप कहते हैं ना एनर्जी मेडिसिन। तो आप क्या करते हो कि उसके अंदर बस आप जैसे कहते हो ना हिप्नोटाइज़ करते हो पेशेंट को, कुछ भी ऐसे इमेजेस दिखा के, पिक्चर्स दिखा के, जिसमें वो एक इन अ स्टेट ऑफ डीप स्लीप या डीप रिलैक्सेशन में जा सकते हैं। और इनकी टेक्निक्स उन लोगों को ही पता होती है, प्रॉपर एक डिप्लोमा या कोर्स होता है इसके ऊपर। तो आप ज़रूर इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखना हिप्नोथेरेपी पे, थोड़ा सा हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। What is hypnotherapy? It creates an altered state of mind that feels like being very relaxed. अक्सर आपने यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, हिप्नोथेरेपिस्ट होता है वो बस औरत के कंधे पे हाथ रखता है और सर पे हाथ रखता है और एकदम से वो औरत इन डीप स्लीप चली जाती है। तो उसके अंदर ये होता है कि कुछ वो ऐसे मसल्स को पिंच करते हैं आपके नेक के अंदर, या आपके जब आपके सर पे वो हाथ रखते हैं, या आपको कुछ ऐसी जिसे कहते हैं नेकलेस को या किसी पेंडेंट को घुमाते हैं और कहते हैं कि आपने पेंडेंट को देखते रहना है। तो वो कुछ उन्होंने स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स निकाली हुई हैं जो कि जिसे कहते हैं काइंड ऑफ प्रूवन है कि जो स्ट्रेस रिड्यूस करवा सके। पीपल कैन बी टॉट हाउ हिप्नोथेरेपी कैन बी डन एंड डजंट वर्क फॉर एवरीबॉडी, दैट इज़ वाई इसको नहीं यूज़ किया जाता एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। Jacobson's techniques teaches patient to become aware of particular muscles, usually by contracting it. Goal is to condition the muscle to achieve a relaxed state quickly and for prolonged period of time. तो ये टेक्निक जैसे मैंने आपको बताया यूज़ करते हैं हिप्नोथेरेपिस्ट कि उन्होंने कुछ सीखे होते हैं ऐसे मसल जिनको आप पुश करने से बैक पे या नेक पे, जिनको अगर आप पुश करो या उनको कॉन्ट्रैक्चर में या रिलैक्सेशन में लेके आओ तो यू कैन गो इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम वेलबींग। दैट इज़ वाई अक्सर आजकल जो उसे कहते हैं मसाज जिसे कहते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं जो कि जब आप उनसे बैक का मसाज करवाते हैं तो यू गो इन अ स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन बिकॉज दे हैव लर्न सर्टन टेक्निक्स। अगर आप किसी भी मसल को उसके ऊपर मसाज करो या उसको रिलैक्स करो तो आपकी पूरी बॉडी इन अ स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन चली जाती है। Biofeedback technique, another technique that is helpful in reducing stress induced muscle activity. It teaches the patient voluntary control over automatically regulated function of the body. तो इसकी ये टेक्निक इतनी अच्छे तौर पे जिसे कहते हैं साबित नहीं हुई और ना ही इसका कोई ऐसा एविडेंस है। उसके अंदर बस ये कहते हैं कि आप जिसे कहते हैं ना वॉलंटरीली ऐसे ही अपने कंट्रोल करो उन चीज़ों को जो कि ऑटोमेटिक है। फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग मूवमेंट अगर आप बहुत तेज़ तेज़ करो, योगा में अगर बताते हैं तो उसमें भी कहते हैं अगर आप बहुत तेज़ तेज़ ब्रीथ करो फॉर 5 to 10 मिनट्स तो उसमें भी आपकी बॉडी इन स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन जाएंगी। बिकॉज अब आप डीप जब फॉर एग्जांपल जब आप रैपिड ब्रीदिंग करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो आपका माइंड को जब ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है तो वो रिलैक्स करता है। कंपेयर टू जब ऑक्सीजन कम माइंड को जाता है तो आपका माइंड इरिटेबल होता है, यॉन करते हो आप, इरिटेबल होते हो। तो ये भी एक टेक्निक है, लेकिन ये एक बायोफीडबैक टेक्निक है, ये इतनी अच्छे तौर पर साबित नहीं हो पाई। साइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, it refers to all medicine that has not been tested using the scientific method and has no evidence to
इट्स एफिकेसी। मतलब एलोपैथी के अलावा हर वो मेडिसिन जिसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, जो कि इंक्लूड करता है होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर टेक्निक दैट इज़ यूज्ड बाय चाइनीज़, hikmat and other forms of herbal medicine. In our cultures, alternative medicine usually becomes the first line of treatment that a patient adopts when he or she become ill. तो अक्सर घरों में भी देखा, अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हुआ, अक्सर आप घर पे ये कहते हो कि जी जोहर जो शानदार पिला दें या अदरक वाली चाय से इलाज कर दें। फिर अगर हालत बिगड़ती है तो आप एंटीबायोटिक खिलाते हो पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाके। लेकिन उससे पहले हमारे घरों में भी या हमारी सोसाइटी में भी अक्सर आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ही पहले यूज़ की जाती है। Alternative medicine advice can be given from everyone. You don't need to be an expert in it. Allopathic medicine was considered as a Western invention and it's harsh for the body that was considered. And there is no evidence for alternative medicine की effectiveness. That is why allopathic medicine ही यूज़ की जाती है। जब भी हमारे पास पेशेंट इमरजेंसी मेडिकल यूनिट में आता है और उसको हार्ट अटैक होता है तो हम उसको कोई हकीम की दवाई नहीं देते। हम फ़ौरन से पहले उसको क्या करते हैं कि उसको एंटी कोगुलेंट्स पे लगा देते हैं, उसको हार्ट सपोर्टिंग ड्रग्स पे लगा देते हैं, और फिर अगर आपको लगता है कि उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज की ज़रूरत है तो वो ये सारी दवाइयाँ एलोपैथिक में आएंगी। ये कहा जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को आप प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए यूज़ करते हो, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए हमेशा इफेक्टिव एलोपैथिक मेडिसिन ही होती है। सो एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इट इज़ अनएथिकल टू रेकमेंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट टू एनी ऑफ आवर पेशेंट्स इवन इफ़ वी हैव पर्सनली फील दैट दे आर इफेक्टिव। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। मुझे बहुत मज़ा आया आप सब लोगों को पढ़ाने में। आप लोगों का माशाल्लाह रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है। मैं तीनों ही सेक्शन से बहुत अच्छी तरह सेटिस्फाई हूँ। इंशाल्लाह व्हेन वील मीट अगेन वी विल कीप रिव्यू लेक्चर्स एंड ऑब्वियसली ईमेल्स में तो मैं अवेलेबल हूँ ही, तब भी इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी काउंसलिंग सेशंस में। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि हर लेक्चर को मैं हर बच्चे के लिए एवरेज स्टूडेंट को जहन में रखते हुए मैंने इजी बनाने की कोशिश की है। और अगर मेरे से कोई गलती होगी तो उसकी माजरत। और इंशाल्लाह वील मीट अगेन, वील हैव रिव्यू लेक्चर्स, वील टॉक अबाउट इट, वील हैव आवर एग्ज़ाम्स। और इंशाल्लाह जब आप सब दुआ करें, रमज़ान का महीना है, रोज़े रखें, अल्लाह से दुआ करें कि हम जल्द से जल्द इस मुसीबत की घड़ी से बाहर आ जाएं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।